اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حضرات گرامی، جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان سے پہلے جو آیات تھیں ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے کل سنا ہے کہ اس سے پہلے طلاق کے مسائل بیان کی جا رہے تھے اور پھر رضا وغیرہ کے اور بہت سے احکام، قسم ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے مال میں شرکت کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہیں. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو. آگے سوال یہ ہے کہ ابھی احکام کا بیان ہو رہا تھا، مختلف احکام، معاشرتی احکام. اب یہ جو ہے نمازوں کا اہتمام رکھو، کیا بات ہوئی بیچ میں؟ تفصیل کے ساتھ ابھی دیکھا آپ نے مطلقات کا ذکر تھا. ابھی یہ آیت جو آئی ہے اس سے پہلے کہ وہ عورتیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، مہر بھی متعین نہیں تھا، تو کوئی بھی مہر نہیں ان پر. البتہ یہ کہ شوہر کو کچھ نہ کچھ اپنی مقدرت بھر دینا ہے، متع طلاق اس کو بولتے ہیں، اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ ضرور، اور لوگ طے کریں گے. دوسری بات یہ پھر بیان ہوئی کہ وہ عورت جس کا جو ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن مہر متعین تھی تو اس کو نصف مہر دینا ہے، یہ ہے نا. پھر اس کے بعد حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کیا ربط ہے اوپر سے؟ خواجہ صاحب اوپر جو بات ہے پھر نماز کی نگہداشت کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ شجاع الدین صاحب کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو سلسلہ احکام تھے، سلسلہ احکام کے بعد یہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس جی والمنکر والبغی، ہاں. لہذا وہ آیت کیا بتاتی ہے؟ ابھی تک تو حقوق العباد کی باتیں چل رہی ہیں. اچھا اچھا، ایک حقوق اللہ کی طرف کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ توازن کی اچھا اچھا، ٹھیک، توازن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ بتائیے بھائی. سوال واضح ہو گیا کہ نہیں؟ کہ احکام کے بیان کر رہے تھے، مختلف احکام، معاشرتی احکام تھے. پھر اس کے بعد نماز کی نگہداشت، نماز کی نگہداشت رکھو، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، یہ بات ہوئی نا. تو وہ احکام کے بیچ میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال ہوا. ٹھیک ہے. شجاع الدین صاحب ایک اور پہلو دراصل میرا خیال آپ لوگ جلدی سمجھ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ احکام بیان کرنے سے پہلے امت مسلمہ کو جہاں قیادت کے منصب پر فائز کیا، وہیں یہ کہا تھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد چاہو اور صبر سے. یہ بات ہوئی نا. پھر احکام بیان کیے گئے، تفصیلی احکام، تقریباً 40 احکام ہیں، تقریباً 40 احکام بیان کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اب بتائیے، اب کچھ روشنی ملے گی. گویا کہ نمازی کا حکم شروع میں بھی اور نماز کا حکم آخر میں بھی. کیوں؟ اب تو کچھ بات واضح ہوئی ہوگی. اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، قربت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور دین کا اہم ترین ستون نماز ہے. ٹھیک ہے. شجاع الدین صاحب کچھ بات تو آ رہی ہے اب دیکھیے. مدد حاصل کرنے کے لیے نماز کا ہی ذریعہ ہے انہی کے پاس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی صاحب بولیے، دلچسپی لیجیے بھائی. اور کچھ
नमाज का हुक्म शुरू में भी और नमाज का हुक्म आखिर में भी, क्या वजह है? कोई वजह होगी ज़रूर। तो बात सही है। जैसा कि आप लोग दीन में बुनियादी हुक्म क्या है? बुनियादी सुतून है नमाज। यानी अकायद के बाद जो आमाल का नंबर आता है, अकायद के बाद जो आमाल का नंबर आता था, आमाल में नंबर 1 क्या है? नमाज। और जितने अहकाम हैं, जितने आमाल, सब सानवी दर्जे के हैं। मालूम ये हुआ कि जिसकी नमाज दुरुस्त हुई, जी, जिसने नमाज का एहतमाम किया, ज़िंदगी जो दूसरे मसाइल मामलात हैं वो ज़रूर दुरुस्त होंगे। जिसने नमाज को बर्बाद किया वो दुनिया के जो दूसरे मसाइल जो अहकाम दीनी हैं उसको बदरजे अवला बर्बाद करेगा। आपको याद होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने आमिलों को खुतूत लिखते थे, उसमें एक लफ्ज़ ख़ास तौर पर एहतमाम करना किसका? नमाज का। और याद रखो कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे दीनी मामलात में हमारे नज़दीक अहम तरीन मामला किसका है? नमाज का। मन अकामत सलात अकामत दीन और मन हदमा हदमत दीन। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को बर्बाद किया तो नमाज के अलावा जो अहकाम है उनको बदरजे औला बर्बाद करने वाला होगा। ये हज़रत उमर का कौल। इससे रोशनी पड़ती है क्या? नमाज बुनियादी शय है। अगर नमाज का एहतमाम होगा तो दीन के दूसरे मसाइल का एहतमाम होगा। नमाज ही जो उभारती है, तो ये बुनियादी चीज़ है। आप देखें कि ये तो यहाँ सूरह बकरा है, तफसीली हकाम है। इस वजह से आपने तो या अय्युहल्लज़ीना मुस्तईन, उसके बाद एकदम बहुत से हकाम, बहुत लंबे चौड़े, फिर आखिर में कुछ औसाफ आप देखेंगे कुरान मजीद की। जैसे सूरह मोमिनून है, सूरह मोमिनून का आगाज़ किससे है? क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम। उसके बाद कुछ औसाफ हैं। क्या है औसाफ? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम कायम वल्लज़ीना हुम अला बिशहादातिहिम कायमून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम मुहाफ़िज़ून। यानी 6 औसाफ 7 औसाफ बयान किए गए हैं मोमिनीन के। 7 औसाफ जो बयान किए गए हैं, शुरू में भी नमाज का जिक्र और आखिर में नमाज का जिक्र। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, आखिर में वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम मुहाफ़िज़ून। यही मुहाफ़िज़त, इसी मुहाफ़िज़त का जिक्र है। मालूम ये हुआ कि नमाज ही बुनियाद है। अहकाम में नमाज बुनियाद है। अगर नमाज में इंसान ज़ाया कर रहा है तो दूसरे अहकाम का एहतमाम नहीं कर सकता। ये गोया कि इसकी रूह है। इस वजह से इसको जो है पहले। दूसरी बात ये हुई कि अला सलावात वस्सलातुल वुस्ता, और बीच वाली नमाज। ठीक है ना, हमारे मुतरजम ने बीच का नमाज किया है। वस्सलातुल वुस्ता से कौन सी नमाज मुराद है? असर, नमाज असर। ठीक है, और लोग बताएं? ज़ोहर भी है। ठीक है, और लोग बताएं? जी, बाज़ रिवायतें फजर की भी हैं। जी, फजर की भी हैं, ज़ोहर की भी हैं, जैसे मौलाना बता रहे हैं, मगरिब की भी हैं साहब जी। तो गोया की तमाम नमाज। मालूम यह हुआ कि हर नमाज क्या है? सलात उस्ता। बेहतरीन नमाज की हिफाजत करो। वसा उस्ता माने बेहतरीन नमाज। तुम्हारी हर नमाज बेहतरीन नमाज होनी चाहिए। हर नमाज क्या होनी चाहिए? बेहतरीन नमाज। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन के माने क्या करेंगे आप? दरमियानी उम्मत नहीं, बेहतरीन उम्मत। उम्मतन फाज़िलतन, बेहतरीन उम्मत तुम हो। कुंतुम खैरा, वही बात है ना। वहाँ उम्मतन वसतन कहा, वहाँ दूसरे खैर उम्मत कहा है, बेहतरीन उम्मत। तो बेहतरीन नमाज यानी हर नमाज तुम्हारी क्या होनी चाहिए? बेहतरीन नमाज होनी चाहिए। ये बयान किया है कि मालूम ये हुआ कि नमाज
बुनियाद है। इस बुनियाद पर, इसी वजह से पहले शुरू किया नमाज से, फिर इख्तिताम भी नमाज पर। सवाल पैदा होता क्या अब आगे अहकाम नहीं है? अहकाम है, लेकिन वो वजाहत है, अहकाम के वजाहत कुछ सवालात पैदा हुए हैं जो पीछे अहकाम बयान किए उसी को कुछ वजाहतें आ रही हैं। खुद देखिए नमाज के सिलसिले में, फ़ैन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, फ़ैन खिफ्तुम, नमाज तुम्हें काम करना है, नमाज की निगहदाश्त ज़रूरी है, हर नमाज की निगहदाश्त। अगर तुम खौफ की हालत में हो, अमन की हालत ना हो, फरिजालन और रुकबानन, तो कैसे नमाज पढ़ोगे? फरिजालन, शुजाउद्दीन साहब, कैसे नमाज? रिजालन, खड़े होकर, रिजाल में पैदल चलते हुए, रिजालन माने पैदल चलते हुए। तो रिजाल जमा है किसकी? ख्वाजा साहब, रिजाल जमा है किसकी? हाँ, पैरों की अरबी में बताइए। अरे हाँ, किसकी जमा है? नहीं, देखिए उन्होंने देखिए शुजाउद्दीन साहब बता दिया, पैदल बताया ना, पैदल चलते हुए ना। शुजाउद्दीन साहब देखिए सही बताया है, मर्द की बात नहीं हो, रिजाल। यहाँ असल में अब्दुल मतीन साहब जगह जगह तो रिजाल कव्वामून है भाई, रिजाल है, तो वही रिजाल है ये, वो रिजाल नहीं है, ये रिजाल दूसरा है। ये जमा राजिल की, राजिल जमा रिजाल है, माने पैदल चलने वाले। तो अगर खौफ की हालत है, अमन की हालत नहीं है, तो जैसे मौका मिले तुमको तो नमाज अदा करो पैदल चलते हुए, और रुकबानन या सवारी पर। सवारी की हालत में नमाज छोड़ना नहीं है, उसकी निगहदाश्त रखनी है, उसकी हिफाजत करनी है, खा मैदान जंग। ये बात हुई, ये बयान करना चाहता है, क्योंकि मैदान जंग गर्म होने वाला है जी, गर्म होने वाला है। चंद ही दिनों के बाद मार्का पेश आने वाला है। इसी पहले हिदायत दी जा रही है कि अगर देखो नमाज का एहतमाम करना है मैदान जंग में भी, जब मार्का गर्म हो जाए तो फिर क्या है, अगर नमाज इज्तिमाइयत के साथ न पढ़ सको तो कैसे पढ़ो? चल, जैसी तुम्हारी ड्यूटी लगा दी गई है, अगर महाज जंग यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे हिफाजत में दिया जा रहा है, चलते हुए नमाज पढ़ो, या सवारी पर तुम हो, सवारी पर नमाज पढ़ लो, अपनी ड्यूटी से काफ़ी नहीं होना। फ़ैन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन फ़ैदा अमिन तुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू। लेकिन जहाँ तुम्हें अमन की हालत हो जाए तो फिर उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है, इज्तिमाइयत के साथ जी, जमात के साथ, और सारे फ़राइज़, अरकान, वाजिबात की अदायगी के साथ। नमाज में फ़राइज़ कितने हैं शुजाउद्दीन साहब? मोटे मोटे फ़राइज़, क़याम और तकबीर, ठीक है, और सुजूद, रुकू, ठीक है ना। रिजालन में देखिए वो सब, हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, कैसे आएंगे? चल रहे हैं आप, अब क़याम कहाँ रहा जी? रुकबानन हैं, गोया कि इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हालत में तुम हो वो बहुत सारे इसके अरकान तुमसे क्या हो जाएंगे? साकित हो जाएंगे। कब? हालत खौफ में। लेकिन जब हालत अमन में हो जाओगे तो क्या होगा? वो सारे जो क़याम भी फ़र्ज, सुजूद भी जी, रुकू भी, सब हो जाएगा ना। अब यहाँ सुजूद कहाँ होगा? सुजूद नहीं हो पाएगा ना, चलते हुए नमाज पढ़नी है। गोया कि नमाज खुदा की याद है, यही है ना, खुदा का जिक्र है। जैसा कि बिल्कुल शुरू में फ़ज़्कुरूनी वश्कुरूनी, मुझे याद रखना, मैं तुम्हें याद रखूंगा, यही ना, मुझे याद रखना, भूलना मत। तुम चाहे हालत अमन हो वहाँ भी याद रखना है, और हालत खौफ में भी याद रखना है, क्योंकि खुदा की याद के बगैर कैसे तुम जिंदा रहोगे? गो रहा मैं रही नहीं, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रही है। ये बात है, ये है ईमान। इसी वजह से यहाँ कहा गया हालत खौफ में भी नमाज का एहतमाम होना चाहिए। और कुछ अरकान जो है ना, कुछ शराइत इससे क्या होंगे? तखफीफ हो जाएंगे। जैसा कि सूरह निसा में लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह, कमी कर दो। और कमी में क्या है? वहाँ
कसर अरकान, कसर रकात नहीं, कसर अरकान है। अरकान जैसे आपने बताया ना, रुकू, क़ियाम, सुजूद, इस सब क़िरात, ये है ना भाई, सब है, सब फ़राइज़ में से है ना। तो वहाँ क्या हो जाए, कसर अरकान में कमी हो जाएगी। कब? हालत खौफ। ये बात हुई, ठीक है ना। तो गोया कि ये बताया कि हालत खौफ में भी नमाज का एहतमाम करना है, क्योंकि खुदा की याद, और मोमिन के सामने खुदा की याद कि कोई चीज़ है ही नहीं उससे बढ़कर। इस वजह से फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। उसके बाद जो है, अब देखिए कुछ अहकाम इसके बाद, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम। अब बताया हमने ना, देखिए ये हुक्म नहीं बयान हो रहा कोई, पीछे हुक्म बयान हो चुका है उन औरतों का जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, बयान हो चुका है ना। उनकी इद्दत क्या है? 4 महीना 10 दिन। अब सवाल पैदा ये हुआ कि अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को इंतकाल, वसीयत उसने कर दी है कि ये 1 साल तक रहे हमारे घर, 1 साल तक रहे मरने के बाद, तो इद्दत तो गुजारेगी, और 1 साल तक जो है मज़ीद जो है 4 महीना 10 दिन है ना, तो गोया कि उस, हाँ 6 और उसमें बढ़ जाएगा, रह सकती है, उसको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है कि नहीं बात? वाज़ेह हुई बात ना। लेकिन ये आयत भी मनसूख है, किससे मनसूख है? सूरह निसा की आयत से, क्योंकि वरासत में इसको हक जब मिल गया तो कौन निकालेगा उसको? वो तुम्हारा शक्ति है ना भाई, कानूनी हिस्सा उसको मिलेगा ना 1/8, कैसे निकलेगी वहाँ से? नहीं निकल सकती ना। तो ये बात हुई, तो उसने इसको क्या किया, मनसूख इस माने में कर दिया कि 1 साल नहीं, अब तो रहेगी, जहाँ चाहे रहे, यहाँ रहना चाहे रह सकती है, जाना चाहे जा सकती है। एक बात हुई, तो इसकी वजाहत हो गई गोया यहाँ, ठीक है ना। तो गोया कि नया हुक्म नहीं है, बल्कि उसकी वजाहत है। दूसरी बात यह है कि वलिल मुतल्लक़ात मताअम बिल मारूफ हक़्क़ल मुत्तक़ी, मुतल्लक़ात के लिए मताअम बिल मारूफ है, कुछ उसको देना पड़ेगा। मुतअ तलाक, ये मुतअ तलाक उसको बोलते हैं। तलाक का जो है उसको कुछ देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? क्या? मताअम बिल मारूफ, मारूफ के मुताबिक उसको देना पड़ेगा। और फिर क्या करा? हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अब कुछ सवालात यहाँ पैदा हो जिसकी वजह इसमें हो रही है वलिल मुतल्लक़ात से। सवाल क्या पैदा हुआ? सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई देखिए, अगर यहाँ जो बयान हुआ है कि वो औरतें जिनको तलाक रुख़सती से पहले दे दी जाए, तो उनके है ना कि मुतअ तलाक देना है उसको, या वो औरत रुख़सती से पहले दे गया, उसका महर मुतय्यन है, उसको भी कुछ न कुछ देना है ना, निस्फ़ उसको देना है। अच्छा, वो औरत, मुतल्लक़ा औरत जिसको 3 तलाक के जरिए उसको जुदा, उसको कुछ मिलेगा कि नहीं? एक सवाल देखिए उभर रहा है, उसका जवाब यहाँ दिया जा रहा है। क्या जवाब दिया? उसको भी मताअम बिल मारूफ मिलेगा, उसको भी देना चाहिए। तो मताअम बिल मारूफ में क्या है शुजाउद्दीन साहब? मुरव्वजा तरीके से क्या दिया जाएगा? मेहर, महर तो है, उसको देना ही देना है महर। हुस्न सुलूक, हुस्न सुलूक यानी जिस तरह तुम बहन बेटी को रुखसत करते हो, 4 आदमी बैठेंगे वहाँ, देखेंगे कि इस खातून जो तलाक दी गई है वाकई ज़्यादती किसकी है, जी ज़्यादती किसकी। 4 आदमी बैठे मारूफ मुताबिक फैसला करें, अगर देखेंगे भाई शौहर की ज़्यादती है, उस पर कुछ ना कुछ रखा जाएगा, 10,000 20,000 25,000 दो तुम इसको। इस आयत की रोशनी में सुनेंगे नहीं आप? वही मुतल्लक़ात मताअम बिल मारूफ, तमाम मुतल्लक़ात को, वो औरतें जिनको तलाक मुग़ल्लज़ा दे दी गई है, उनका भी हक बनता है। ख्वाजा साहब समझ रहेंगे नहीं बात को, उनको भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस तलाक दे ख़त्म, ऐसा नहीं, बड़ा दे दिया। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक कहते हैं बस एक ओढ़नी दे दी जाए। एक ओढ़नी जो दिया मताअम बिल मारूफ नहीं है, हक़्क़न, फिर हक़्क़न मुत्तक़ीन का रहा है। हक़्क़न माने फ़र्ज़ है, हक़ है मुत्तक़ियों पर, राइट, जी राइट है ये, जी मुत्तक़ियों पर राइट है, ये फ़र्ज़ है। अब ये फ़र्ज़ है, राइट है, इतना ताकीदी जुमला, और उस पर क्या कहेंगे एक आँख ओढ़नी दे दें, जी ये तो नहीं समझ में आती बात। तो वो मारूफ की क़ैद जो लगी, 4 आदमी बैठे दोनों तरफ से और देखें, तो फिर कुछ न कुछ उस पर लगाएं कि तुम्हें इतना देना है।
कितना देना है इसकी जो है शरात नहीं की ख्वाह, वो तो मारूफ के कौत क्यों लगती है। मुआशरा मुदाखत करेगा, पूरा समाज मुसलमानों को मुदाखत करेगा, वो बैठे वो तय करेगा। ये बात हुई। ये बात करने के बाद आपने देखा वो ऊपर शुरुआत जो हुई थी रोज़े के बाद, किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? रोज़े का बयान के, फिर उसके बाद क़िताल का हुआ ना, फिर हज का उसी ज़िम्ने में, फिर इन्फाक का, ये सब बयान हुआ तफसील के साथ। फिर अब उसी को एक दूसरे अंदाज से ले रहा है। बनी इसराइल की एक तारीख का हवाला दिया, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम हुम, देखिए ये समझिए, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयत, जो आयत आए कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह ताला इस तरह से तौज़ीह कर रहा है। गोया हाफ़िज़ुल सलावात के बाद जो 2-3 आयतें हैं, ये सब का तौज़ीही आयत हैं। जो कुछ सवालात पैदा हो रहे थे उनकी वजाहत, ये कोई नया हुक्म नहीं है बल्कि उनकी वजाहत। अब जितनी आयतें आएंगी आप देखेंगे उसकी वजाहत, उसकी तफसीलात बयान की जा रही हैं। तो अब जो है बनी इसराइल के, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अपने घर से भाग निकल पड़े, अपने इलाकों से निकल पड़े, हालांकि वो हज़ारों की तादाद में थे, मौत के डर से निकल पड़े। तो अल्लाह ने कहा मार जाओ, फ़क़ाल मूतू सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नास, अल्लाह बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है लोगों पर, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन लोग अक्सरियत शुक्र नहीं अदा करती। अब सवाल पैदा होगा यहाँ इसका जिक्र क्या, बनी इसराइल तारीख का जिक्र यहाँ क्यों हो रहा है? हमने शुक्री का तज़किरा करते हैं। ठीक है, और बोलिए साहब, बनी इसराइल का तज़किरा, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो घर से निकल पड़े, निकल भागे, जो भी कहे हज़रल मौत, क्यों निकले वो? मौत के डर से। अमालका ने हमला कर दिया था, ज़बरदस्त कौम थी वो, हमला कर दिया, भागे, ये मुकाबला नहीं कर सके, भागे, हज़ारों की तादाद में थे। तो अल्लाह ने कहा मर जाओ। तो ये बनी इसराइल की तारीख़ है, क्यों यहाँ बयान किया जा रहा है? डटे रहने इबरत हासिल करो। बनी इसराइल की तारीख़ हज़ारों की तादाद में थे, जब अमालका ने हमला किया तो भाग खड़े हुए। मक्के में आप जानते हैं मुसलमानों को जुल्म हो रहा था, ठीक है, बड़ा जुल्म हो रहा था। हिजरत हो चुकी है, इस्लामी स्टेट बन चुका है। मक्के से खबरें जा रही थी बार बार कि कोई हमारे भाइयों जुल्म हो रहा है। तो सहाबा इकराम, खुसूसन नौजवान सहाबा क्या थे, अरे क्यों नहीं हमको हुक्म दिया जाता, वगैरह सब बात है। उनकी थोड़ी तरबियत हो रही, देखो ज़रा सा, हज़ारों की तादाद में थे और भाग खड़े हुए। जब जिहाद फ़र्ज हुआ तो भाग खड़े हुए। तो ये हवाला करने के बाद देखो, गौर करो उन पर। फिर उसके बाद क्या है, अल्फाज क्या आ रहे हैं, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह। अब कातिल के खिताब किससे है? वो तारीख़ हवाला, इजमाली हवाला देखिए है तारीख़ का। हमने बताया ये बनी इसराइल की तारीख़ कौन से है? वो अमालका ने जो हमला किया है। अमालका ने जब हज़रत मूसा के बाद, हज़रत शमून नबी के सब पहले जब हमला किया, वो भाग खड़े हुए, उसका जिक्र किया है बनी इसराइल की तारीख़ का। फिर उसके बाद मुसलमान खिताब, ऐ मुसलमानों, बनी इसराइल की तारीख़ से इबरत हासिल करो और अल्लाह के रास्ते में जंग करो, अल्लाह के रास्ते में जंग करो, भागना मत तुम। और लेकिन अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वालमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। बनी इसराइल की जो तारीख़ अभी बयान है उसमें यह है कि अल्लाह ने कहा मर जाओ, मुस्तफ़ा साहब, अल्लाह ने कहा मर जाओ, फिर अल्लाह ने ज़िंदा किया। मतलब अल्लाह ने कहा मर जाओ, ये कैसी मौत थी? अब देखिए सवाल पैदा होगा ना, अल्लाह ने कहा मर जाओ, अल्लाह बताइए, अल्लाह ने कहा मर जाओ, फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया। खौफ की मौत। हाँ, अब दो शक्लें देखिए हैं। बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उन पर मौत तारी हो गई, हक़ीक़ी मौत। फिर अल्लाह ने क्या किया, उनको ज़िंदा किया, अल्लाह को रहम आ गया, ज़िंदा किया। एक तावील ये है।
دوسری تعویل یہ ہے فقال موتو مر جاؤ، اخلاقی موت، اخلاقی موت مر جاؤ، اخلاقی موت وہ مر گئے گویا۔ قوموں کی زندگی میں موت جو ہے، زندگی یا موت، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کے اخلاق سے ہے۔ قوموں کی زندگی اخلاق سے بنتی ہے، اخلاق سے پیدا ہوتی ہے، اور موت اخلاق ہی سے، اگر بے اخلاق ہو گئی، بد اخلاق ہو گئی، نکمی ہو گئی قوم، تو پھر کیا ہے؟ ملی موت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو ملی موت، مرو تم ملی موت، تو ان پر گویا ملی موت طاری ہو گئی۔ واضح ہو گئی بات؟ تو مفسر کے گروہ یہ بھی کہتا ہے مر جاؤ یعنی ملی موت، کیونکہ ملت زندہ کیسے رہتی ہے؟ خواجہ صاحب بولیے، ملتیں زندہ کیسے رہتی ہیں؟ یہ بات ہے جہاد سے، اور جہاد سے تم نے گروگردانی کی ہے، لہذا مر جاؤ، ملی موت، زندہ رہو گے لیکن بے وقت، بے وزن، کوئی تمہیں اہمیت نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اہمیت قوموں کو جو حاصل ہوتی کیوں ہوتی ہے؟ جہاد سے، جذبہ جہاد سے۔ جو قوم مرنا چاہتی ہے، مرنا جانتی ہے، پھر اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، وہی زندہ رہتی ہے اس دنیا میں۔ تو گویا کہ یہ بنی اسرائیل کا تھوڑا سا حوالہ دے دیا، بتا دیا، اور پھر مسلمان کرا کہ مسلمانوں ان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ملی موت رہی کتنے سالوں تک؟ بتا دیجیے اب۔ 40 سال تک، 40 سال تک، 40 سال تک ہاں بھٹکتے رہے وہ۔ 40 سال کے بعد جو ہے ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے، اس طرح سے پھر جا کر جنگ ہوئی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ من ذا الذی، قاتلوں کے بعد ظاہر ہے کہ ضرورت ہے کس چیز کی؟ قرض کی، یعنی خرچ کرنے، خرچ کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون جو اللہ کو قرض دے؟ بہترین قرض، بہترین قرض کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ بہترین اضافے کے ساتھ دے گا نا، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ بہترین قرض کیا ہوگا؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر، جو ہے اس کے دین کو غالب کرنے کی خاطر قرض دو۔ اب بتائیے قرض کا لفظ استعمال کر اللہ تعالیٰ، کیونکہ عربوں کے نزدیک قرض بڑی اہم چیز تھی۔ بولیے، قرض بہت ہی اہم چیز تھی، قرض کو وہ نبھاتے تھے، دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ قرض اور فرض دونوں ایک ہے۔ قرض فرض دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ قرض مانے لوٹانا، مانے قرض مانے کاٹنا، اور فرض مانے یہ فرض ہے، مانے یہ قطعی ہے نا، یہ کہتے ہیں فرض ہے، یہ حکم یعنی قطعی ہے، یہ قرض ہے یعنی قطعی ہے، یعنی دینا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو قرض دو گے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، ضروری ہے لوٹانا، اعتماد رکھو۔ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ دے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے، یقبض مانے، یقبض مانے نپی تلی روزی دیتا ہے، وَيَبْسُطُ، جو چاہتا ہے خوب دیتا، پھیلا کر دیتا۔ تو یہ روزی اللہ تعالیٰ دی ہوئی ہے، یہ کشادگی جو ہے اللہ تعالیٰ دی ہوئی ہے۔ کسی کی روزی جو ہے نپی تلی ہوتی ہے، یہ کسی کی کشادہ ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اچھا صاحب، ایک چیز اور ہے اس میں، ایک چیز اور، اس میں جو بنی اسرائیل کی تھا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے۔ یہ آیت کیوں آئی؟ یہ ٹکڑا کیوں آیا؟ اوپر والے میں دیکھیے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہا کہ تم مر جاؤ، پھر زندہ کیا، پھر آگے کہا رہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثریت ناشکری ہے۔ مطلب بتائیے سعید اقبال صاحب، اللہ جو ہے لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثریت ناشکری ہے۔ بولیے، نعمت کو بھول جاتے ہیں۔ کیا بھول جاتے ہیں؟ وہاں ذکر نعمت کا کیوں آیا؟ موت مر جاؤ، ملی موت، پھر کرا اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا ہے، اس کے
मौजूद भी नाशुक्र हैं। जिंदा उठाया है, जिंदगी बख्शी, ठीक है, जिंदगी कैसे बख्शता है वो? जिहाद, ये बात है। ये जो जिहाद फर्ज करता है अल्लाह ताला, वो फजल है। हुक्म जिहाद क्या है? फजल खुदाबंदी है। वलाकिन अक्सर नासी ला यशकुरून, लेकिन लोग शुक्र नहीं अदा करते। गोया कि जिहाद का तकाजा क्या है? शुक्र का तकाजा है। शुक्र तकाजा करता है। अल्लाह ने नेमतें दी हैं, और सबसे बड़ी नेमत क्या है बोलिए? इस दुनिया में मुसलमानों पर सबसे बड़ी नेमत क्या है अल्लाह ताला की तरफ से? अजहर साहब बोलिए, सबसे बड़ी नेमत एक मुसलमान के लिए क्या है? अजहर साहब बोल दीजिए आप। अरे बहुत आसान है, ईमान है, दौलत इस्लाम की दौलत है ना। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फल्लफ़ा फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये नेमत, ईमान की नेमत, इस्लाम की नेमत, कुरान की नेमत, जो भी कहिए, ये नेमत सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन जब इस्लाम पर आँच आने लगे, ईमान पर जब आँच आने लगे, मोमिन रहना जो है मजबूर, जो है मुश्किल हो जाए, तब क्या करना है? हाँ, इसका इस नेमत का तकाजा है ना। इस नेमत पर आँच आ रही तो क्या किया जाए? हाँ, बचाया जाए इसको। इस वजह का वलाकिन अक्सर नासी ला यशकुरून, लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं। वरना जब ये देखें, इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, उसके बाद वज़्कुरू निअमतल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वज़्कुरू निअमतल्लाह। इस्लाम पर आँच आ रही है तो ये तुम्हारे शुक्र का तकाजा है कि जिहाद में हिस्सा लो, बढ़ चढ़ हिस्सा लो और भागो मत। आगे थोड़ी उसकी वजाहत और होगी इंशाअल्लाह। इतनी बात आप याद रखिएगा। इसके बाद कुरान मजीद कह रहा है, हाँ, अलम तरा इलल मलअ मिन बनी इसराइल, क्या तुमने देखा बनी इसराइल के सरदारों को? मूसा के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम जा चुके हैं दुनिया से। जब उन्होंने अपने नबी से कहा, नबी कौन है? मुख्तलिफ नबी का नाम आया है, ज़्यादातर शमऊन को लेते हैं जी, शमऊन पैगंबर है। अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक मलिक का तर्जुमा क्या किया है? बादशाह मुक़र्रर फरमा, फरमा रवा का तर्जुमा क्या? फरमा रवा किया है, फरमा रवा का तर्जुमा, ठीक है। फरमा रवा का मतलब हुक्मरान। हुक्मरान माने फरमान देने वाला, यही ना है। तो बादशाह का तर्जमा जो है, देखिए यहाँ जो है जंगी है ना, जंग का मसला चल रहा है ना, तो कई कमांडर इन चीफ, मुतालबा किस के? बादशाह नहीं। यही तो, ये थोड़े नहीं नबी अलग रहेगा, बादशाह कोई अलग रहेगा। ख्वाजा साहब बोलिए, नबी जो है, नबी उसे बादशाह किसी और के चलेगी क्या? ना। तो क्या कह रहे हैं? कमांडर इन चीफ। मलिक के माने क्या होंगे? मलिक फारूक साहब यहाँ कमांडर इन चीफ का मानेंगे ना। ये कि अब जाहिर सवाल पैदा हुआ कि नहीं, अरे नबी से करेगा बादशाह, नबूत गोया अलग रहेगी, बादशाहत अलग रहेगी। अरे ये तो ख्वाह मुझे नहीं कह रहा है ना, बोलिए। तो क्या मतलब मलिक के माने क्या होंगे? कमांडर इन चीफ, जिसकी क़ियादत में हम जंग करें। तो उन्होंने क्या फरमाया? कहा कि क्या ऐसा नहीं है, अगर तुम पर क़िताल फ़र्ज किया गया, तुम रोगर्दानी करोगे, मैदान छोड़कर भाग जाओगे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि अरे वाह, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? हमारा ला नुकातिल, क्या है कि हम जंग न करें, जबकि हमको हमारे इलाकों से निकाला गया है और हमारे बीवी बच्चों से हमको दूर कर दिया गया है जी, हम क्यों नहीं जंग करेंगे? तो जो है फलम्मा कुतिबा, कुरान में फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लील, लेकिन जब उन पर क़िताल फ़र्ज किया गया तो उन्होंने एराज़ किया। अलबत्ता थोड़े ने, कुछ लोग जमे रहे, कुछ अक्सरियत ने एराज़ किया। अब आप देखिएगा कि कुरान में किस अंदाज से ले जा रहा है। आपस मंजर में क्या है? जिहाद। कौन सा जिहाद होने वाला है ख्वाजा साहब? भाई ये बात है, बद्र का मार्का पेश आने वाला है। किस अंदाज से तरबियत कर रहा है मुसलमानों की जी? हाँ, तैयारी हो रही है। किस अंदाज से कि देखो बहुत तुम बोल रहे हो ना, बहुत बोल रहे हो,
اور آپ کو معلوم ہے نوجوان بھی تھے اور منافقین تو بہت زیادہ بڑھ بڑھ کی باتیں کرتے تھے، آپ سمجھ لیجیے بہت، یہ تو لچھے دار باتیں کرتے ہیں نا، یہ جو ہے یہ بہت شاندار گفتگو، ارے موقع ملا خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہاں ہم سروں کے قطب مینار تعمیر کرتے ہیں، بولے یہی بولتے ہیں نا، ہاں اس طرح کی باتیں بہت ہی کرتے تھے۔ تو یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسا مت، ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے، ایک آئینہ کہ دیکھو ذرا سا دیکھو، کیونکہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ہونے والا، معلوم ہے ان کی تربیت کس انداز سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ تربیت کر رہا ہے۔ تو وقار